I work hard and honestly at it. Means the butcher was trying to say that he was honest at his work and do his work very hard. There is no reason for me to be ashamed of my work, and because of my honesty and hard work, there is no reason to feel ashamed at my work. O holy sage, continue to butcher. If I do injury to other creatures, so do you as you did to the crane. फिर then Bachar asked that holy man that if I do injury to other creature as you did to the crane, जैसे आपने क्रेन को इंजरी दी थी, अगर मैं भी वैसे ही किसी क्रिएचर को इंजरी दी दूँ. By the time they had reached the butcher house, and after some time they had reached at the butcher's house. The butcher wife was doing household chores and two children were playing. At the butcher's house, when they reached, they saw that the butcher's wife was doing some household work and the two children of butcher were playing together. The butcher introduced the sage to them. Then he entered a room where an old couple was sitting. The butcher introduced at his house to the holy man, and after that they went to a room where the old couple was sitting. He touched the feet of his parents. Here is a learned sage who has come from a far off place. The butcher had touched the feet of his parents. मतलब बच्चर ने अपने पेरेंट्स के पैर छुए और बाद में उसने अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक साधु है जो बहुत दूर से आए हैं. बचर्स फादर ग्रीटेड हिम एंड सेड वेलकम होली सेज. बचर फादर सेड नमस्ते to the holy man and welcome to his house. My parents are my God. We all serve them with devotion and love. Bachar was saying that his parents are like the God and we will serve them with devotion and love. और हम उन्हें बहुत ही अच्छे से पूछते हैं और बहुत ही अच्छे से रखते हैं. We considered caring for them to our greatest duty. The butcher said. Butcher was saying that our greatest duty is that we take care of our parents, and it is our very respectful duty. In doing one's duty cheerfully, like true virtue. Butcher was saying that we take care of our parents and it is one of our good habit. This is what the dutiful lady sent you to learn. Now the butcher was trying to understand, trying to learn to the holy man that मीन्स अब बच्चर उस होली मैन को यह सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें उस लेडी ने यहाँ पर इसीलिए भेजा था. फर्दर ही एक्सप्लेन हो होली मैन, यू हैव रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड deserted your ailing aged parents. Now he explained to the holy man that you run away from your responsibilities. आप अपनी जिम्मेदारियाँ से भाग गए और अपने रोते हुए पेरेंट्स को छोड़ते हुए आप स्पिरिचुअल स्टडीज़ को लर्न करने चले गए. स्पिरिचुअल एनलाइटिंग इज़ यूजलेस if you have neglected one's dharma or duty. Now he explains that spiritual knowledge is useless. मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा है वह
यूजलेस है, उसका वह व्यर्थ है अगर आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से न निभाओ। कौशिक नाउ अंडरस्टूड एवरीथिंग। ही रिमेम्बर्ड हिज मदर्स क्राई। नाउ कौशिक अंडरस्टूड his duty, that what is his duty, and he remembered that when he was going for spiritual studies his mother was crying. You have shown the path of true virtue. Now he was saying to the butcher that you have shown me the one of the good habits, that how can I take care of my parents. Kaushik said and hurried to his house, and now he went to his house very quickly. He served his parents lovingly till the end of his final days. Means जब तक उनके पेरेंट्स जिंदा थे तब तक कौशिक ने उनकी अच्छे से देख रेख करी। इस चैप्टर में एक यंग ब्राह्मण रहता है जिसका नाम कौशिक रहता है। वह एक बार मथुरा जाने के लिए ज़िद करता है, और जब उसके मन में आता है कि मैं मथुरा जाऊंगा आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, तो वह अपनी मम्मी के पास जाता है, और यह सुनकर उसकी मम्मी हक्की बक्की रह जाती है। बट कौशिक ने यह डिसाइड कर लिया था कि उसे जंगल में जाना ही है और उसे वहाँ पे वेदास यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करना है। और अंत में उसने किसी की भी नहीं सुनी और वो जंगल चला गया आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। एक दोपहर की बात है, वैन कौशिक एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहा था, तो एक क्रेन नाम की पक्षी आई उड़ते हुए और कौशिक के ऊपर जो पेड़ था उसमें से एक शाखा पे जाके बैठ गई, और जब वो शाखा पे बैठी तो उसने कुछ ड्रॉप्स जो है कौशिक के ऊपर गिरा दी, और कौशिक को यह देख के गुस्सा आया और उसने तेजस्वी निगाहों से उस बर्ड को देखा और वह बर्ड जिंदा जल गई। आफ्टर कुछ समय बाद कौशिक को लगा कि एक सच्चा साधु होने के कारण मैं इतना बुरा कर्म कैसे कर सकता हूँ, और वे उसके लिए सॉरी फील होता है। फिर वो सोचता है कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, और यह सोचते ही वह एक विलेज गांव में चला जाता है दान मांगने के लिए, और दान मांगते मांगते वह एक घर में खटखटाता है। वहाँ पे एक लेडी डोर को ओपन करती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए, और उसका जो हस्बैंड रहता है वह ड्यूटी से लौट जाता है, और उसके बाद वह सोचती है कि पहले मैं अपने पति को अटेंड कर लूँ, मतलब उनको खाना पीना और पानी परोस दूँ, उसके बाद मैं इस साधु को दान देती हूँ। फिर साधु जो है ये चीज़ देख के गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड एक साधु से ऊपर है, क्या तुम्हें साधु की शक्ति के बारे में नहीं मालूम। तो वह औरत जो है बहुत ही शांत दिमाग से उसे जवाब देती है कि हाँ, मेरे को एक साधु की शक्ति के बारे में मालूम है। पर फिर वो उसको बोलती है कि एक सच्चा साधु वह नहीं है जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो उस पक्षी के बारे में बताती है कि तुमने उस पक्षी को कैसे मार दिया, और यह सुनकर साधु आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस औरत को उस पक्षी के बारे में कैसे मालूम। उसके बाद वह लेडी उसको मथुरा भेजती है एक कसाई के पास कि तुम मथुरा में एक धर्मंत्य नाम का व्यक्ति है, तुम उनके पास चले जाओ। फिर कौशिक जो है धर्मत्य से मिलने के लिए मथुरा के लिए निकल जाता है, और जब वो धर्मत्य के दुकान पर पहुंचता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मैं एक बचर यानी कि कसाई की दुकान पे आ गया हूँ। फिर कसाई उसको अपने घर ले जाता है। इसी बीच में दोनों में वार्तालाप होती है कि क्या तुम्हें अपने काम में शर्म नहीं आती,
कसाई बोलता है कि मैं अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए मुझे अपने काम करने में कोई शर्म नहीं आती। फिर वह बात करते करते अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उसकी जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसकी वाइफ घर के कामों में लगी रहती है और उसके 2 बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं। फिर वह घर के कमरे में साधु को ले जाता है जहाँ पे उसके ओल्ड पेरेंट्स बैठे हुए थे और फिर वह उनके पैर छूता है। फिर वह बच्चा उस साधु को समझाता है कि अपने कर्म को करना ही एक सच्चा काम है। तुमने जो करा, अपने माँ बाप के साथ अपना काम छोड़ के तुम आध्यात्मिक शिक्षा लेने चले गए, उससे अच्छा यह था कि तुम अपने कर्म पे ध्यान देते और अपने घर की देख रेख करते। और इसके बाद कौशिक यह समझ चुका था कि मेरा काम क्या है और वह अपने घर को लौट जाता है और अपने पेरेंट्स की देखभाल करता है जब तक वो जिंदा है।